Good morning, BCA students. So this is the final topic, right? We are through with the C++ syllabus. Abhi final topic is files. Files is always a little bit difficult to understand, but see, in this PPT, I'll be discussing, in this video, I'll be discussing just the theory part, right? We'll do all the practical, each and every practical. So you should understand the theory part of the files. कि files होती क्या है, right? So file is a collection of related data stored in a particular area on the disk. ठीक है, तो डिस्क में से होता है हर चीज स्ट्रीम्स की फॉर्म में वर्क करती है. हमने आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम भी पढ़ा था शुरू में ही, सी इन सी आउट कैसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, राइट. सो स्ट्रीम इज इट रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स. सो टेक्स्ट फाइल होती है और बाइनरी फाइल्स होती है. टेक्स्ट फाइल्स इट इज अ फाइल दैट स्टोर्स इन ASCII कैरेक्टर्स. इन text files, each line of text is terminated with a special character known as end of file, EOF character or delimiter character. When this EOF character is read or written, certain internal translations takes place. Binary file, it is a file that contains information in a binary format. It is held in memory. In binary files, no delimiters are exist and no translations are occur, right? So this is how it works. These are the disk file, program, input stream, read the data. इनपुट स्ट्रीम यूज होगी और जब फाइल आउटपुट स्ट्रीम होगी जब हमने डेटा को राइट करना होगा. ये बहुत चीजें याद रखना. जब हमने डेटा को राइट करना होता है तो आउटपुट स्ट्रीम होती है. हमेशा ये चीज बहुत गलती होती है. जब हमने फाइल पे कुछ लिखना है तो हमें यूज करनी है आउटपुट स्ट्रीम, राइट. जब हमें फाइल से रीड करना है डेटा तब हम यूज करेंगे इनपुट स्ट्रीम, राइट. So in C++, a disk is a file is a stream. Information is either stored in it or received from it. मतलब read कर सकते हैं या fetch कर data read कर सकते हैं या data store कर सकते हैं. Seen data out are the objects of the class IO stream which are opened or linked by default. ठीक है, आप default link में, but a disk file which we want to use is not linked to any stream. जो फाइल हमें यूज करनी है वो किसी स्ट्रीम के साथ यूज नहीं है. उसके लिए हम तभी फाइल स्ट्रीम एफ स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट. सो फॉर इनपुट एंड आउटपुट टू फाइल वी नीड some stream. File represents storage medium for storing data or information. Streams refer to a sequence of bytes, right? So we have to use a header file f stream, and of stream क्या करेगा? It represents output stream and this is used for writing into the files. मतलब जब हमें write करना है तो हमें output stream यूज करनी. याद करो, जब हमें डेटा लिखना है write करना है तो output stream यूज करनी है. जब डेटा रीड करना है when it represents input stream and this is used for reading data from the files. अगर हम f stream टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो it will do both read and write for us, right? ठीक है, अगर हम OF stream का बताते हैं तो हम write करेंगे, IF stream के थ्रू read करेंगे. अगर F stream का बनाते हैं तो हम दोनों कर सकते हैं, right? कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो याद होने चाहिए. Now IO stream से again we have F stream. तो iOS स्ट्रीम का तभी F स्ट्रीम का दोनों ऑब्जेक्ट बन सकते हैं. IF स्ट्रीम का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है और OF स्ट्रीम का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, राइट. तभी हमने, और F स्ट्रीम इज द बेस. ठीक है, ये डायग्राम कई बार आपको बनाना पड़ता है जब आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय फाइल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट फाइल्स एग्जिस्ट. ठीक है, कैसे उनका इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करता है. सो फाइल बफ, its purpose is to set file buffers for read and write. F stream base provides operations common to file streams, serve as a base for F stream, IF stream and OF stream. तीनों के लिए बेस क्लास की तरह काम करता है. IF stream provides input operations, contains open with default input mode. OF stream provide output operations, ठीक है, contains open with default output mode. ठीक है, एक इनपुट मोड के लिए और एक आउटपुट मोड के लिए. एफ स्ट्रीम प्रोवाइड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस. इट कंटेन्स ओपन विद डिफॉल्ट इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है, ये देखो
अब हम अगर एक, क्योंकि ये क्लियर रहते हैं, एफ इन की से पता चल जाएगा कि ये फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, एफ आउट से बन जाएगा ये आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, और एफ आई ओ से पता चल जाएगा ये एफ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट दोनों का ऑब्जेक्ट है, राइट। दिस इज हाउ विल डिक्लेयर आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ऐसे बनाएंगे, ओ एफ स्ट्रीम का ऐसे बनाएंगे, राइट। ठीक है, जब आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम रीड कर सकते हैं डेटा, और जब हम ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम राइट करेंगे डेटा। ये चीजें याद रखना, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल कैसे करते हैं? सी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल वी कैन यूज टू वेज, आइदर वी कैन ओपन थ्रू अ कंस्ट्रक्टर और वी कैन ओपन थ्रू अ फंक्शन, ठीक है। अगर हम वी आर ओपनिंग यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर, विल डायरेक्टली पास दी फाइल कॉपी, राइट। सी, ओ एफ स्ट्रीम एफ आउट हमने फाइल का नाम दिया, आउटपुट मोड में खुल जाएगी, राइट। आई एफ स्ट्रीम इनपुट ओनली मोड पे खुल जाएगी, ठीक है। ओपनिंग अगर हम फाइल ओपन से करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? दिस इज द वे, पहले आप स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लिखोगे, देखो ऑब्जेक्ट बनाओगे पहले, आप आई एफ स्ट्रीम क्लास का भी बनाते हो, आई एफ स्ट्रीम क्लास का भी बना सकते हो, ओ एफ स्ट्रीम क्लास का भी बना सकते हो। डॉट ओपन फंक्शन लिखोगे, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट मतलब आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जाम्पल हमने बनाया था एफ आई फॉर एफ स्ट्रीम इनपुट, एफ ओ फॉर एफ स्ट्रीम आउटपुट, एफ आई एन फॉर एफ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो आप कोई भी बना सकते हो, राइट। उसके बाद डॉट ओपन, उसके बाद फाइल नेम, कॉमा मोड्स। मोड्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज, अभी मैं बताती हूँ कौन कौन से मोड्स एग्जिस्ट करते हैं। ये मोड्स एग्जिस्ट करते हैं, अपेंड में खोलना है मतलब ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती है और आपको पॉइंटर को एंड ऑफ द फाइल पे लेके जाना है। 8 मोड पे क्या होता है? गो टू द एंड ऑफ द फाइल ऑन ओपनिंग, ठीक है, एंड ऑफ द फाइल पे चला जाएगा। बाइनरी मोड में खोलेगी फाइल तो बाइनरी यूज करना पड़ेगा। iOS इन लिखोगे तो फॉर रीड ओनली मोड खुलेगी, आउट को लिखोगे तो आउट राइट ओनली मोड पे खुलेगी। नो क्रिएट लिखोगे तो ओपन फेल्स इफ द फाइल डज नॉट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ओपन फेल हो जाएगा, नई फाइल नहीं क्रिएट करनी। iOS नो रिप्लेस लिखना है तो ओपन फेल्स इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब हम उस फाइल को रिप्लेस नहीं करना, राइट। जो ट्रंकेट, डिलीट द कंटेंट्स ऑफ द फाइल, जो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसके कंटेंट्स को डिलीट कर देता है और नई फाइल बना देता है, राइट। ऑल दीज फ्लैग्स कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन यूजिंग अ पाइप सिग्नल। ये देखो पाइप ऑपरेटर यूज करते हैं, राइट। इस ये पाइप ऑपरेटर कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हैं, राइट। This is how we'll close the file. Close के लिए कुछ नहीं करना, but dot close, no need to input anything, right? Just you have to write close. At the end of the program, before the ending main, you'll just write this line. That's all, right? It will only close. अब end of the file मैंने तुम्हें बताया था, end of the file ये बताता है कि end of the file exist कर गया, right? तो जब तक हम तब तक read करेंगे, see आई एफ स्ट्रीम आई एफ इन, ठीक है, हमने तब तक रीड करा डेटा, ओपन करी फाइल डेटा, हमने तब तक रीड करा डेटा जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। एफ आई एन मीन्स एंड ऑफ द फाइल, जब तक ये ट्रू रिटर्न करेगा जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। जैसे ही एंड ऑफ फाइल आ जाएगा ये वाइल लूप में क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, और ये बाहर आ जाएगा, राइट। सेम वे एंड ऑफ फाइल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट ईओएफ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स जब तक 0 एग्जिस्ट नहीं आता, ईओएफ की वैल्यू 0 नहीं होती, तब तक यू कैन रीड फ्रॉम द फाइल, राइट। यू कैन डू बोथ वेज, राइट। File pointers and their manipulations. See, different manipulations can be formed with different pointers. Each file has associated pointers such as file pointers. One of them is input pointer or get pointer used for reading the contents of a given file location, ठीक है। The other is used as a output pointer or put pointer used to write something on the given file location. We can use the pointers to move through the file, right? So default actions what you can perform, see, input pointer, output pointer हमेशा append में खड़ा होएगा और input pointer हमेशा starting पे होगा, राइट। और अगर आपने फॉर रीड राइट सिर्फ राइट ओनली पे खोली है तो यहाँ पे होगा, दैट मीन्स जो अगर फाइल में कुछ लिखा भी होगा तो वो नहीं ओपन होएगा, मतलब वो ब्लैंक तरीके से खुल जाएगी, ठीक है। ऐसे फाइल के डिफॉल्ट एक्शन होते हैं, राइट। सो अब हमें फाइल को मूव कराना है तो वी हैव डिफरेंट पॉइंटर्स, ठीक है। डिफरेंट पॉइंटर्स क्या होते हैं? इनपुट फाइल पॉइंटर होता है, राइट। आउटपुट फाइल पॉइंटर होता है,
they can be manipulated using the various member functions seekg and seekp. तो get pointer और put pointer को हम position करा सकते हैं. See, seekg will move get pointer to a specified location. seekp will move the put pointer to a specified. seekg get pointer को move करेगा, seekp put pointer को. ऐसे ही tellg get pointer की current location को बताएगा आपको, और tellp पुट पॉइंटर की करंट लोकेशन बताएगा आपको कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, राइट. ऑफसेट क्या करता है, बिगनिंग एंड कहाँ पे ले जाना है विद रेफरेंस टू द पोजीशन वो चेंज कर देता है. iOS एंड ऑफ द फाइल पे ले जाएगा, राइट. एम iOS बिगनिंग मतलब बिगनिंग से m बाइट्स मूव करे, गो फॉरवर्ड बाय n बाइट्स, ठीक है. एफ आउट seekg को बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड m बाइट्स फ्रॉम द करंट पोजीशन. सी iOS बिगनिंग iOS करंट, ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है. माइनस m क्या होगा, बैकवर्ड मूव करेगा, m क्या होगा, फॉरवर्ड मूव करेगा करंट पोजीशन से. माइनस m मतलब बैकवर्ड पोजीशन से तो आप बैक में ही मूव कर सकते हो ना, फ्रंट में तो मूव कर, तो iOS एंड से माइनस है, राइट. सो दीज आर द वेरिएंट pointer manipulations that you can perform on seekg and seekp. Next is the operations put and get. Put is single character जब आप लिखते हैं, and get is जब single character read करते हैं, ठीक है. write and read functions जब लिखते हैं, जब ब्लॉक पूरा ब्लॉक ऑफ बाइनरी डेटा आप रीड और राइट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, then you will use read and write operations. This is the syntax, कैसे आप कन्वर्जन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को. साइज ऑफ मतलब कितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतने बाइट्स आप फाइल में लिख रहे हैं. So read and write functions are used to design to manipulate blocks of character data, since at the user end generally the values are represented in ASCII, whereas inside their machine there is a binary equivalent. To store and retrieve in binary form, the binary functions read and write can be used. See कैसे लिखेंगे, ये देखो character pointer में convert किया, ampersand variable, right, size of variable. So first parameter is a pointer to a variable at which the data retrieved from the file is to be stored in case of read, and address at which the data is to be written when retrieved from a file right. So these are the very basics of the file जो आपको use करने हैं. Okay, you should go through it once. If you find any problem you can discuss it with me. Thank you and have a nice day.